वी आर कंप्लीटेड अप टू पॉइंट नंबर 50. बराबर है ना? चलो 2 मिनट में अपन फॉर्मूले रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, देन विल कंटिन्यू द न्यू एग्जांपल्स. 51 से आगे बढ़ना है अपने को. बराबर है ना? चलेगा? ओके. ऑन सॉल्विंग 2 लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियसली, if I get x is equal to 10 and y is equal to 20, what is the meaning of this? 10 comma 20 is the point of intersection of 2 lines. On solving 2 linear equations simultaneously, if we get x is equal to 10 and y is equal to 20, 10 comma 20 is the point of intersection. When 2 lines do not intersect with each other, when they are parallel, when lines are said to be parallel, if slope of first line is equal to slope of second line. What is the formula for slope of the line? ax plus by plus c is equal to 0 minus a by b. बट अगर वही इक्वेशन में y is equal to mx plus c के फॉर्म में लिखा तो m represents the slope of the line. m represents slope of the line. अगर ax plus by plus c is equal to 0 में जो माइनस a by b है, y is equal to mx plus c में वही m रहेगा, y is equal to mx plus c में वही m रहेगा. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. जो ax plus by plus c is equal to 0 में माइनस a by b रहेगा, वही y is equal to mx plus c में m रहेगा. When 2 lines are said to be perpendicular to each other, when product of their slopes is minus 1. If slope of first line is equal to slope of second line, parallel. Slope of first line is not equal to slope of second line, oblique. मतलब not parallel. Intersect करते, क्या एंगल में करते पता नहीं, बट पैरेलल नहीं है मतलब इंटरसेक्ट करते. yes or no? And when 2 lines are said to be perpendicular, when product of their slopes is minus 1. So if m1 is slope of one line, m2 is slope of second line, lines are said to be parallel if m1 is equal to m2, perpendicular if m1 into m2 is equal to minus 1, oblique if m1 is not equal to m2, m1 is not equal to m2. याद आ रहा है बच्चों? What is standard format of a linear equation? ax plus by plus c is equal to 0. अब 2 क्वेश्चन में पूछूंगा, अच्छे से आंसर देना. What is the slope of the line passing through x1 y1 x2 y2? स्लोप पूछा मैं. Slope of the line passing through 2 points. 2 पॉइंट कौन सा? एक x1 y1 दूसरा x2 y2. बोलो. y2 minus y1 divided by x2 minus x2. अच्छा, y2 minus y1 की जगह y1 minus y2 बोलो, नीचे भी फिर x1 minus x2 बोलो. बात एक ही है, समझा या नहीं? इज द स्लोप ऑफ द लाइन. एंड अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स x1 y1 x2 y2? y2 minus y1 divided by y minus y1 is equal to x2 minus x1 divided by x minus x1. ये क्या था? इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2. याद आ रहा है बच्चों यहां तक? चलो फिर शैल वी कंटिन्यू. पॉइंट नंबर 51. Draw the lines 3x plus 5y is equal to 150 and 5x minus 3y is equal to 30 on a graph paper. समझा क्या बच्चों? ये ड्रॉ करो बोल रहा है, कर लेते फिर अपन. ऐसे नो ड्रॉ करके भी दिया हुआ है, बट आप बताओ 3x plus 5y is equal to 150, आप क्या ज्वाइन करके ड्रॉ कर लेते? हाँ बोलो, 2 पॉइंट बताओ मुझे, बोलो ना बच्चों. 50,0 एंड 0,30. जरा देखो ये पॉइंट 0,30 है क्या? ये 50,0 है क्या? तो इन दोनों को ज्वाइन करके वो लाइन लाया. कौन सा लाइन बोलो? 3x plus 5y is equal to 150. कितने लोगों को समझा यहां तक? दूसरा लाइन क्या है बताओ? 5x minus 3y is equal to 30. ध्यान है क्या है? हाँ बोलो. आप मुझे बताओ whether 0, minus 10 will satisfy this equation. 0, minus 10 will it satisfy this equation? And आप बताओ 20, 20 will it satisfy this equation? चेक तो करो. 5 into 20 कितना आता है? 5 into 20 कितना आता है? 100. नहीं हो रहा है? नहीं तो क्या होगा बोलो? नहीं, और ऐसा कुछ बताओ. 25. अच्छा 30, 40 चलेगा ना? 30, 40 चलेगा. 30, 40 चलेगा क्या बच्चों?
तो आप बताओ ये जो दूसरा पॉइंट है इसमें ये 0 - 10 है क्या? नहीं समझा आपको ये? एंड ये देखो ये 30, 40 है क्या? देखो तो बच्चों 30, 40 आप कर लो प्लॉट बराबर कर दिया क्या आपने? ये दोनों को मैंने ज्वाइन किया क्या बताओ? नहीं समझाना रहे। ये दोनों को 0 - 10 नीचे है भाई वाई एक्सिस पे एंड 30, 40 ज्वाइन कर लिया मैंने, समझा क्या आपको ये? तो ये दो पॉइंट को ज्वाइन करके मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब बताओ बच्चों ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कि नहीं? अब मुझे ये ग्राफ ये 100% एक्यूरेट नहीं है इसलिए नहीं समझेगा शायद, बट मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाने का दूसरा मेथड क्या है मेरे पास? ये इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देना। मुझे एक बताओ पहला इक्वेशन को अपन 5 से कुछ मत करो, ध्यान दो सिर्फ यहां पे। पहले इक्वेशन को दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई करो। हाँ करो। 15x प्लस 25y इज इक्वल टू 750। कितने लोगों को यहां तक समझा? सेकंड इक्वेशन को दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करो। करो। 15x माइनस 9y इज इक्वल टू 90। एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन? तो ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस। वेदर इज कैंसल? टेल मी इज इट 34y इज इक्वल टू 750 माइनस 90 कितना आता है? 660। एंड आप बताओ 660 डिवाइडेड बाय 34 का क्या आंसर है बोलो? 19.41176 इज द वैल्यू। 11764705 ऐसा कुछ है क्या? इज द वैल्यू ऑफ y। अच्छा बताओ पुट द वैल्यू ऑफ y इन एनी ऑफ द इक्वेशन। चलो अपन फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं। देयरफॉर बोलो बच्चों 3x प्लस 5 इंटू कितना है बताओ? ये 19.411764705 ऐसा कुछ है क्या? 5y इज इक्वल टू कितना बोलो? 150। करो कैलसिफाई। 150 मेमोरी प्लस एंड उसमें से ये 19.411764705 इंटू 5 मेमोरी माइनस वो डिडक्ट करो। मेमोरी रिकॉल डिवाइड बाय 3। बोलो क्या आंसर आ रहा है x का? इज इट 17.6471 अप्रोक्सीमेटली? ये x का वैल्यू है क्या बताओ आप मुझे? ये x का वैल्यू है क्या? तो आप बताओ बच्चों ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था वो दो लाइन का था कि नहीं? ये जो पॉइंट था वो क्या था आप मुझे बताओ? बोलो 17 पॉइंट, बोलो जल्दी 6471। बोलो बोलो पॉइंट जल्दी बताओ। 19 पॉइंट जल्दी बताओ 41176। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था। उन्होंने अपने को फाइंड करने के लिए बोला था क्या? नहीं, बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये समझा क्या आपको? ये चलो सब लोग अच्छे से ध्यान दो। अभी ध्यान दे रहे हो? और आप मुझे बताओ ये जो ऊपर जा रहा था 5x - 3y ये लाइन का स्लोप क्या था? स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ दिस लाइन बोलो मेरे भाई, बोलो 5/3। एंड आप बताओ स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ दिस लाइन -3/5। ये देखते ही कुछ फ्लिकर हो रहा है क्या? क्या हो रहा है बोलो? प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ टू लाइन्स, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ टू लाइन्स मतलब एज वेल एज m1 इंटू m2। टेल मी इज इट 5/3 इंटू बोलो -3/5 क्या आया बोलो? -1। देयरफॉर दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एंड एक एटलीस्ट आपको देख के एक फील आ रहा है क्या ये लाइन्स परपेंडिकुलर है करके? यस और नो? मैंने पॉइंट्स को करेक्ट प्लॉट किए थे। आपको दिख रहा है कि नहीं एग्जैक्टली? अब एग्जैक्टली अपन कोई एंगल काउंट नहीं मेजर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बट आपको दिख रहा है कि नहीं ये 90 डिग्री एंगल है करके? ये 90 डिग्री एंगल है करके दिख रहा है कि नहीं आपको? एक इधर जा रहा है एक इधर इंटरसेक्ट कर रहा है, वो भी 90 डिग्री में कट कर रहा है कि नहीं? क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज हाउ मच बोलो? -1। देयरफॉर दीज टू लाइन्स आर बोलो परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज क्यों? क्योंकि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। समझा क्या बच्चों? ये आपको लग रहा है कि मैंने कुछ इंफॉर्मेशन यहां पे दिया है बट आजू बाजू में अपन कुछ लिख रहे हैं ताकि अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। और समझ रहा है क्या? ये बुक का पर्पस समझता है ना ऐसे क्यों है या नहीं? प्रोडक्ट ऑफ स्लोप सच्ची में -1 आया क्या? एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन का स्लोप हमने मल्टीप्लाई कर दिया, -1 आया एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 है। इसका इंटरप्रिटेशन है दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया क्या अपने को?
अब बताओ बच्चों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे ग्राफ से लाना इतना आसान काम था क्या? 17.6471 ऐसा देख के आपको ह्यूमन आईज की हेल्प से ये समझेगा क्या पॉइंट कि ये 19.64 है? इतना आसान नहीं है। या 17.64 है, 19.41 है, मुश्किल है क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। बट दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और नॉट? तो हाउ टू गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ? हाउ टू गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? बाय सॉल्विंग टू लीनियर इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। इतना सिंपल आंसर है उसका, बाय सॉल्विंग टू लीनियर इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। इफ आई गेट x is equal to p and y is equal to q, p comma q is the point of intersection. P comma q is the point of intersection. Yes or no? On solving two linear equations simultaneously, if we get x is equal to p and y is equal to q, p comma q is the point of intersection of two lines. P comma q is the point of intersection of two lines. समझा क्या? Yes or no? Okay. कर दो ये पे चेंज। लिखो लिखो, आराम से लिखो, कोई गड़बड़ नहीं। अगला, तब तक बाकी लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। हो गया? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, दी लाइंस, दो लाइंस दिए है क्या आपको? पहला लाइन कौन सा है बताओ? 8x माइनस 3ky प्लस 21y इज इक्वल टू 33। तो टेल मी माय फ्रेंड्स, इज इट 8x प्लस, बोलो ब्रैकेट में क्या रहेगा? माइनस 3k प्लस 21, ब्रैकेट के बाहर y इज इक्वल टू 33 या माइनस 33 इज इक्वल टू 0। ये एक पहला लाइन था। दूसरा लाइन क्या था? बोलो ना बच्चों, 15x माइनस 28y इज इक्वल टू 233। ये दूसरा लाइन है क्या? चलो आप मुझे बताओ, स्लोप ऑफ दी लाइन कितना है? पहले लाइन का स्लोप बताओ। माइनस, बोलो ए कितना है? 8 है या नहीं है? बाय बी कितना है? बोलो माइनस 3k प्लस 21। बी तो एज इट इज लिखा मैंने। अच्छा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई करो तो इधर क्या आएगा? बोलो 8 डिवाइडेड बाय क्या आएगा? ये बोलो 3k माइनस 21। कितने लोगों को ये समझा? 8 डिवाइड बाय 3k माइनस 21। ये स्लोप ऑफ द लाइन है क्या भाई? कौन से लाइन का स्लोप है वो? फर्स्ट। एंड आप बताओ, स्लोप ऑफ दिस लाइन, ये सेकंड जो लाइन है उसका स्लोप क्या है? बोलो 15/28। वैसे आपने लिखना चाहिए था माइनस ए कितना है? 15 बाय बी कितना है? -28। तो 15/28। यस और नो? आपको इक्वेशन देखने के बाद ए बी के वैल्यू तो समझते हैं ना एटलीस्ट। ए का वैल्यू कितना था? 15। बी का वैल्यू कितना था? -28। तो माइनस ए बाय बी का आंसर 15/28 आएगा ना? तो आप बताओ, ये दोनों लाइन पैरेलल है या परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर है। तो कैन आई से एज these two lines are, बोलो, perpendicular to each other, we can say that, हाँ बोलो, 8 divided by क्या था? 3k minus 21 into 15/28 is equal to -1। डू यू एग्री? बस ये सॉल्व करके k का वैल्यू लाना बहुत बड़ी बात है ना? समझा क्या आपको? चलो बोलो, 15 8 जा कितना था ये? 120 इज इक्वल टू -28 ब्रैकेट में 3k माइनस 21। सब उधर भेज दिया मैंने। समझा क्या आपको ये? तो बोलो देयरफॉर 120 इज इक्वल टू -84k प्लस 28 इंटू 21 कितना आता है? 588। तो 120 माइनस 588, 120 माइनस 588 कितना आता है? 468। इज इट -468 बाय -84 इज द वैल्यू ऑफ k। किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड कर सकते हैं क्या पहले? ये सही है क्या मैंने लिखा हुआ? तो 468 डिवाइड बाय 4 कितना आता है पहले वो बताओ। इज इट 117 बाय
21, दोनों को 3 से डिवाइड करो, 39/7 इज आंसर। हाँ ठीक है, आप जो बोल रहे हो 5.2 आंसर सही है, नो डाउट अबाउट इट, बराबर है कि नहीं। ऑप्शन में 39/7 रहेगा तो यू शुड गो फॉर दैट। अब बोला सर हम सिंप्लीफाई करते बैठेंगे एक एग्जाम में, कुछ मत करो मेरे भाई, आपका आंसर 5 पॉइंट कुछ तो आया था ना, उससे ऑप्शन को चेक करो कि भाई कौन सा ऑप्शन टैली हो रहा है, यस और नो। तो 39/7 या आपने क्या बोला, 5.571428, 5.57 इतना ऑप्शन पे रहा तो भी बस है, वेदर 5.57 इज द वैल्यू ऑफ के। अच्छा बताओ, मैंने जो जितना लिखा यहां पे ये क्वेश्चन का आंसर लाने के लिए, आप रफ में इसका कितना परसेंट लिखते हैं, आप सच्ची में बताओ, जितना लिखा है इसे क्या लिखते हैं आप बताओ। अच्छा मुझे बताओ, ये सेंटेंस लिखते हैं आप एज ये ऊपर का ये सब कुछ, स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन सब लिखते हैं या डायरेक्ट स्लोप लाते? मेरे ख्याल से आप डायरेक्ट यहां से ही स्टार्ट करते, बराबर है कि नहीं। आप यहां से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में भी ये -28 इंटू नहीं करते, आप डायरेक्ट प्रोडक्ट कर लेते कि नहीं उधर जाके, तो हार्डली 2 स्टेप में आंसर, 2-3 स्टेप में आंसर लाते कि नहीं अपन, यस और नो। ये तो, या आप एग्जाम रफ में लिखते हैं एज दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर वी कैन से दैट, ऐसे लिखेंगे नहीं ना। तो वेदर के इज 39/7, समझा क्या। चलो अगले पेज पे थोड़ी जगह और एक क्वेश्चन दूं क्या उधर, राइट डाउन क्वेश्चन लिखोगे भाई, यस सर। क्या नाराजगी है आज कुछ, क्या हो गया मार्केट आज थोड़ा, क्या हो रहा है, मार्केट रिकवर हो रहा है ना, हाँ क्या टेंशन है क्या भाई, कल ज़्यादा लॉस हो गया क्या, लॉ क्लास नहीं था आज, क्यों नहीं हुआ, ओ फिर किसी को हार्ट अटैक वगैरह नहीं आया ना, आया था क्या, सर्वाइव कर लिया मतलब, क्या फोटो वोटो देख रहे, अटैक नहीं आया ना किसी को भाई, आया था, फिर कैसे बच गए। चलो दे दो अगला क्वेश्चन, करेंगे भाई। फाइव एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 93 and 7kx plus 12x minus 13y minus 98y is equal to 200 are perpendicular to each other. Find k. हो जाएगा सॉल्व, these two lines are perpendicular, find the value of k. हो जाएगा क्या बताओ आप, these two lines are perpendicular to each other, find the value of k. ओके अब बताओ बच्चों, पहला जो इक्वेशन है वो है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 93 एंड दूसरा इक्वेशन है 7k प्लस 12 ब्रैकेट के बाहर x माइनस 111y, सही है क्या बच्चों, इज इक्वल टू 200 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यस और नो। देयरफॉर मैं ऐसे लिखा तो सही है क्या बताओ, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इनटू स्लोप ऑफ सेकंड लाइन इज इक्वल टू -1, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इंटू स्लोप ऑफ सेकंड लाइन इज इक्वल टू -1, टू एग्री। बोलो स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन क्या है बच्चों, -5/2, स्लोप ऑफ सेकंड लाइन क्या है बताओ, 7k प्लस 12 डिवाइडेड बाय 111, माइनस कहां गए हो, माइनस माइनस प्लस हो गया, -a/b था ना भाई,
ये आपको नहीं सर, ऊपर लिखो माइनस, माइनस ब्रैकेट में 7k + 12 डिवाइड बाय -111, यस और नो, इज इक्वल टू हाउ मच, बोलो -1. डू यू एग्री? अच्छा चलो ये माइनस को प्लस कर देता हूं तो ये भी प्लस हो जाएगा ना फिर. अरे उधर जाके डिवाइड हुआ, समझा क्या आपको ये? हाँ चलो बोलो, 5 से मल्टीप्लाई करो, इधर क्या आता है, 35k + 60 इज इक्वल टू 222, इज इक्वल टू हाउ मच, 222. तो 222 - 60 कितना आता है, 162 डिवाइडेड बाय 35 इज आंसर, यस और नो. और सिंप्लीफाई होता है क्या कुछ? तो फ्रैक्शन में आंसर रहेगा 162 डिवाइड बाय 35. क्या आंसर है? k इज इक्वल टू 4.628571 अप्रोक्सीमेटली इज आंसर. 4.628571 ऐसा कुछ है. 162/35 इज द वैल्यू ऑफ k. तो आपको दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेगी, तो क्या ये समझा क्या सबको? पक्का बच्चों? नेक्स्ट, उन्होंने आंसर के साथ में दिया हुआ है, आप चेक करो ये सही है कि एक बार, या मैं एक्सप्लेन करूं? चलो एक्सप्लेन भी करता हूं. फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 8,20. ध्यान दोगे? ध्यान दोगे? फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 8,20 हैविंग स्लोप ऑफ हाउ मच, बोलो -0.60. सुनो तो बच्चों, एक क्वेश्चन में दो तरीके से सॉल्व कर रहा हूं यहां पे, चलेगा क्या? पहला एक तरीका देखो, इस लाइन का स्लोप क्या है? एक कोई तो लाइन है, उस लाइन पे एक पॉइंट कौन सा है? समझो एक लाइन है ये, इस लाइन पे एक पॉइंट कौन सा है? 8,20. एंड इस लाइन का स्लोप क्या है? इस लाइन का स्लोप क्या है? -0.60. तो बताओ स्लोप -0.60 है, मतलब -0.60/1 है. तो -0.60/1 स्लोप है, तो इक्वेशन क्या रहेगा बोलो? 0.60x + y. अच्छा मुझे बताओ, इसके सामने कांस्टेंट कुछ भी लिखो, इसका स्लोप तो -0.60 है ना? है या नहीं? 0.60x + y है या नहीं? बस इक्वेशन तो मिल गया, सिर्फ क्लास इज इक्वल टू हाउ मच ये लाना बाकी है ना. वी नो वन ऑफ द पॉइंट ऑन दैट लाइन इज, बोलो 8,20. तो इफ आई पुट x = 8 एंड y = 20, दैट इक्वेशन शुड बी सेटिस्फाइड. तो 0.60 × 8 + y कितना है बोलो? 20 मस्ट बी सेटिस्फाइड. तो बोलो दोनों साइड को मैंने क्या किया, बोलो 8 × 0.60 4.80 आता है, +20 इज इट 24.80. दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया बोलो? 6x + 10y इज इक्वल टू 248. दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया, क्या आया बोलो? 3x + 5y इज इक्वल टू 124. अच्छा एक काम करो, अगर अपने को दिमाग भगवान ने दिया होता तो अपन डायरेक्ट ऑप्शन से कैसे आंसर ला सकते थे, बताता हूं. आप मुझे बताओ, इफ आई पुट 8x = 8 एंड y = 20, वेदर दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड? चेक तो करो. 3 × 8 कितना आता है? 24 + 5 × 20 100. 24 + 100 सेटिस्फाई हुआ. इस लाइन का स्लोप क्या है? 3x + 5y का -3/5. एंड -3/5 मतलब क्या? -0.60. करो कैलसी 3/5 -0.60 सही है क्या भाई? पक्का? तो द आंसर इज दिस. इसी को सॉल्व करने का दूसरा और इससे सिंपल तरीका, स्लोप ऑफ द लाइन क्या था बोलो? -0.60. तो -0.60 मतलब -3/5. खत्म, आ गया आंसर. -3/5 स्लोप है, मतलब क्या? इक्वेशन क्या रहेगा? 3x + 5. एंड अगर 3/5 स्लोप होता तो इक्वेशन लेता मैं 3x - 5y या -3x + 5y. समझता है कि आपको ये? तो 3x - 5y राइट, -3/5 स्लोप है, मतलब इक्वेशन इज 3x + 5y. आप लोग ऐसा बोलिए इज इक्वल टू कहां से लाए? वी नो वन ऑफ द पॉइंट ऑन दैट लाइन. कौन सा पॉइंट है बोलो? 8,20. तो इफ आई पुट x = 8 एंड y = 20, दैट इक्वेशन शुड बी सेटिस्फाइड. तो 3x + 5y इज इक्वल टू हाउ मच बोलो? 124. कितने लोगों को ये समझा? पक्का? ये समझाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो सिमिलर है, आपको दिख रहा है, सिर्फ नंबर बदले हुए मैंने. बता आंसर. 7x + 10y 7x - 10y. ठीक है, सॉल्व करते हैं. स्लोप ऑफ 0.70 है, माइनस नहीं है, समझ रहा है ना? बोलो स्लोप ऑफ द लाइन कितना है? स्लोप ऑफ द लाइन
स्लोप ऑफ द लाइन कितना है भाई? 0.70. तुम चाहो तो इसको 7/10 बोल सकते हो. यस और नो? देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, बोलो क्या रहेगा? इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, बोलो भाई, 7x माइनस 10y. अरे ये 7x माइनस 10y रहेगा तो भी तो स्लोप 7/10 होगा ना. कितने लोगों को यहां तक समझा? माइनस है, समझा क्या आपको? 7x माइनस 10y रहा तो स्लोप 7/10 होगा कि नहीं? बट अब इज इक्वल टू कितना लिखने का? वी नो वन ऑफ द पॉइंट ऑन दैट लाइन इज 8, 10. तो इफ आई पुट x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 10, दैट इक्वेशन शुड बी सेटिस्फाइड. तो 7 इंटू 8 कितना आता है? 56 माइनस 10 इंटू 10 100. 56 माइनस 100, फिर भी लिख लेता हूं भाई, 7 इंटू 8 माइनस 10 इंटू 10. टेल मी क्या आंसर है, जल्दी बताओ. 7x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 44. अच्छा, कुछ स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन रहेगा, मैंने कल ही हालांकि दूर किया था ये. कुछ लोगों को लगेगा सर अगर स्लोप 7/10 है तो इक्वेशन आपने 7x माइनस 10y लिखा, जो माइनस 7x प्लस 10y भी रह सकता है. नहीं समझा आपको? क्या रह सकता है? माइनस 7x प्लस 10y. एंड एक्चुअली वो करेक्ट है स्टूडेंट. तो भी आप बताओ क्या होता फिर? माइनस 7 इंटू एक्स कितना है बोलो? 8 प्लस 10 इंटू बोलो 10, तो माइनस 7x प्लस 10y इज इक्वल, बराबर है कि नहीं बच्चों? यस और नो? माइनस 7x प्लस 10y रह सकता था कि नहीं इक्वेशन? तो मैंने माइनस 7x प्लस 10y में x 8 एंड माइनस 10 रख दिया, तो ये इज इक्वल टू कितना आ रहा है बोलो? 44. दोनों साइड को आप -1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा बोलो? 7x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 44. आप उधर ही पहुंचे ना वापस. नहीं समझा आपको? तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर इज वन एंड द सेम और नॉट. तुम कुछ भी करो, आंसर यही रहने वाला है. 7x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 44, या तो माइनस 7x प्लस 10y इज इक्वल टू 44 बोलो. बात तो एक ही है. या यू कैन से 7x माइनस 10y प्लस 44 इज इक्वल टू 0. 7x माइनस 10y प्लस बोलो 44 इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन. तो इक्वेशन ऑफ द लाइन मिला क्या आपने को? तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे क्या? अगर आपको स्लोप दिया है, क्या दिया है? स्लोप दिया है, एंड क्या दिया है बोलो? एक पॉइंट दिया है. स्लोप दिया है एंड एक पॉइंट दिया है, तो आपको इक्वेशन मिलेगा कि नहीं? यस और नो? ओके. तो 7x माइनस 10y प्लस 44 इज इक्वल टू 0 इज आंसर. टफ है भाई. नेक्स्ट, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through the point 12, 20 and perpendicular to line joining 21, 6, 18, -9. आप करोगे खुद सॉल्व या मैं करूं? आप बोलो. आप ट्राई करने वाले? करो. मतलब देखने का ट्राई, मतलब कहां अपन ज्यादा कहां लोड लेगा, ऐसे देखने का. नहीं नहीं नको कशाला. Find equation of the line passing through point 12, 20 and perpendicular to line joining 21, 6 and 18, -9. Perpendicular to line joining these. क्या आंसर है? x प्लस 5y इज 112. सेम आंसर है. ठीक, गुड. सही गलत से प्रॉब्लम है ही नहीं मुझे. अब ट्राई कर रहे हो, इसी में मैं खुश हूं. फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 12, 20 एंड परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग 21, 6 एंड 18, -9.
ओके बच्चों, ध्यान दोगे यहाँ पे? चलो प्लीज ध्यान दो अगला, ताकि आप अगला क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अभी ध्यान दोगे यहाँ पे, मैंने टाइम दिया था ना आपको सॉल्व करने के लिए, अब ध्यान देने का इधर। बहुत खतरनाक लोग है भाई, कुछ भी चार चार भी बोला तो भी देखते भी नहीं इधर, बहुत जाड़ी चमड़ी के लोग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? जाड़ी चमड़ी, समझते हैं ना? मतलब जो बिल्कुल कुछ भी करो भाई। इधर ध्यान दो, मतलब तुमको क्या लगता है कोई ऐसा कोई तो इंसान तुमको रास्ते पे छेड़ रहा है, ऐसा लगता है क्या कि आप मैं दिखते भी नहीं? मैं जब बोल रहा हूँ इधर ध्यान दो, आपको कोई लग रहा है क्या ऐसे कुछ? बहुत ऐसा फील आता है ऐसे कुछ, तुमने जिंदगी में बड़े तीर मारे, मैं गिनती नहीं किसी को, ऐसा लगता है क्या कुछ? प्रॉब्लम है इधर देखने में। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। कौन सा पॉइंट बोलो? 12,20। तो समझो ये एक लाइन है L1, इसका नाम है, समझो इसका इक्वेशन आपने को चाहिए। इसके बारे में आपने को क्या पता है बोलो? इस लाइन पे एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है? 12,20। और क्या बता इसके बारे में? हाँ बोलो। एंड दिस लाइन इज, बोलो, परपेंडिकुलर टू, किसको परपेंडिकुलर है? ये समझो ये इसको परपेंडिकुलर है। एंड ये परपेंडिकुलर लाइन पे दो पॉइंट आपने को पता है, कौन से बोलो? 21,6 एंड 18,-9। आप ये मत बोलो कि सर ये फर्स्ट क्वार्टर में रहेगा, ये फोर्थ में रहेगा, कहीं ना कहीं वो लाइन पे है मेरे भाई। मैं थोड़ी अभी ग्राफ समझ रहा है क्या, पूरा ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे। इज दैट क्लियर? अपने को किसका इक्वेशन चाहिए? L1 का या दूसरे लाइन का चाहिए? नहीं, L1 का इक्वेशन चाहिए। तो इस L1 जिसको परपेंडिकुलर है बच्चों, उसका स्लोप पता चलेगा क्या आपको? कैसे पता चलेगा? उसके दो पॉइंट पता है अपने को, तो बोलो क्या रहेगा स्लोप इसका? बोलो -9 -6 डिवाइडेड बाय 18 -21। तो बोलो कितना आ रहा है? -15 डिवाइडेड बाय -3, मतलब कितना है? 5/1 इज स्लोप। किसका स्लोप है? वो जो परपेंडिकुलर लाइन का, उसका। तो आप बताओ ये जो L1 है जिसका इक्वेशन अपने को चाहिए, उसका स्लोप क्या रहेगा फिर? स्लोप ऑफ L1 -1/5। डू यू एग्री? स्लोप ऑफ L1 क्या रहेगा? -1/5। कैसे? 5/1 परपेंडिकुलर है उसको, तो -1/5, ताकि प्रोडक्ट -1 हो जाए। कितने लोगों को यहां तक समझा? एंड आप बताओ उसका स्लोप पता है तो उसका इक्वेशन क्या रहेगा? इक्वेशन ऑफ L1 क्या रहेगा? बोलो। स्लोप -1/5 है तो इक्वेशन क्या रहेगा? x + 5y। -1/5 स्लोप है ना भाई, तो इक्वेशन क्या रहेगा? बोलो x + 5y। अब सिर्फ इज इक्वल टू कितना हो सस्पेंस है, वो सस्पेंस में भी कोई दम नहीं। समझा क्या आपको? ये वी नो वन ऑफ द पॉइंट ऑन दैट लाइन 12,20। तो इफ आई पुट x = 12 एंड y = 20, दैट इक्वेशन शुड बी सेटिस्फाइड। तो इट इज 12 प्लस, बोलो, 5 × 20, तो x + 5y = 112 इज आंसर। यस और नो? एंड मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहां तक लाता हूं मेरे भाई। अगर आप अच्छे से देख रहे हो तो आपको समझा रहेगा मैं हाउ टू प्लॉट अ पॉइंट, लाइन मतलब क्या, समझा या नहीं? ये पॉइंट सेटिस्फाई करता है तो क्या? प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने स्लोप दिया, ये कर दिया। स्टेप बाय स्टेप यहां तक लाता हूं मैं, समझता है कि आपको ये, ताकि यहां पे समझ सके। बाकी नालायक लोग कंप्लेंट करते रहते, कुछ तो रहता है कि नहीं? उनका क्या है? उनके लिए सीए में 3 लेवल्स है, फाउंडेशन, 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 फिर आखिरी फाउंडेशन। जो लोग सुनते हैं उनके लिए फाउंडेशन, इंटर, आर्टिकलशिप, फाइनल, ऐसे लेवल से, एंड फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट। समझ रहे क्या? बाकी फाउंडेशन फर्स्ट आइटम, फाउंडेशन सेकंड आइटम, आखिरी दाव। सीए का स्कोप खत्म हो गया है, मज़ा नहीं है सीए में, एमबीए करते। अगर ये कंप्लीट हुआ तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले बच्चों आप हो गए?
जिन लोगों ने ये नहीं किया था तो अब करना चाहिए कि नहीं तुमने. फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through the point minus 16 comma 12 and perpendicular to 8x minus 33y is equal to 200. Perpendicular to 8x minus 33y is equal to 200. ओके. अगला क्वेश्चन में समझो अपने को इसका इक्वेशन लाना है. समझो ये लाइन है L1 है. सुन रहे हो क्या बच्चों? प्लीज सुनो तो बच्चों. फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन. हाँ चलो इसका इक्वेशन लाना है. पासिंग थ्रू द पॉइंट. इस लाइन पे आपने को एक पॉइंट पता है. कौन सा पॉइंट है? -16, 12. और इस लाइन के बारे में क्या पता है आपको? ये जो लाइन है वो किसी और कोई परपेंडिकुलर है तो इसको परपेंडिकुलर है. अच्छा वो परपेंडिकुलर लाइन के पॉइंट्स पता है या उसका इक्वेशन पता है? क्या इक्वेशन है उसका? 8x माइनस 33y इज इक्वल टू 200. ये तो उससे भी आसान हुआ ना बच्चों. तो आप मुझे बताओ इसका स्लोप क्या है? 8/33. तो हमें जो लाइन का इक्वेशन चाहिए उसका स्लोप क्या होगा? उसका स्लोप क्या होगा? -33/8. तो इक्वेशन ऑफ L1 क्या होगा? जिसका जो अपना आंसर है. हाँ बोलो. 33x प्लस 8y. 33x plus 8y. Do you agree? And we know one of the point on that line is -16, 12. तो 33 इंटू बोलो मेरे भाई -16. अच्छा आपको नहीं लगता कि अब ये मैं आपके लिए लिख रहा हूं? क्यों लिखेंगे मेरे भाई? 33 इंटू -16 प्लस 8 इंटू 12. तो मैं कैलसिफाई करूंगा ना यार. क्या आंसर है फिर बोलो? 33x प्लस 8y इज इक्वल टू -432. पक्का ना? तो आंसर इज 33x प्लस 8y प्लस 432 इज इक्वल टू 0. इज द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन. जिस लाइन पे एक पॉइंट है -16, 12 एंड जो लाइन 8x माइनस 33y इज इक्वल टू 200 को परपेंडिकुलर है. कितने लोगों को समझा? ईमानदारी से बताओ. ईमानदारी से समझा है? मैं वापस क्वेश्चन पूछ रहा हूं. कितने लोगों को यह समझा है? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 8, -25 एंड पैरेलल टू लाइन ज्वाइनिंग. 2 पॉइंट्स दिए. अब बताओ सिमिलर कंसेप्ट और नॉट? सिमिलर कॉन्सेप्ट और नॉट? फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 8, -25 एंड पैरेलल टू लाइन ज्वाइनिंग 18, 10 एंड 26, -12. क्या आंसर है? 11x प्लस 4y. ठीक है. अभी देखो डाउट देखो सर. स्लोप को रेसिप्रोकल क्यों किया? कीड़े ज्यादा हो गए थे इसलिए किए. बहुत ऐसे चुपे नहीं बैठ रहे थे वो, तो हमने सोचा कर लेते. एंड मुझे ये बोलने का पूरा हक है कि मैंने कल क्वेश्चन स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ इट्स पैरेलल लाइन, स्लोप ऑफ इट्स परपेंडिकुलर लाइन का टेबल भी बना के लिया है. हो गया बच्चों 57th.
फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन। समझो अपने को ये लाइन का इक्वेशन चाहिए, सुन रहे हो क्या बच्चों, ये लाइन का इक्वेशन चाहिए। अच्छा चलो बताओ इसके बारे में अपने को क्या क्या पता है। इस लाइन पे एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है बोलो, 8, -25, ये पॉइंट है। अच्छा ये लाइन एक लाइन और एक लाइन को पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, पैरेलल है। अच्छा वो पैरेलल लाइन का इक्वेशन पता है या दो पॉइंट पता है, दो पॉइंट, एक कौन सा बोलो 18, 10 एंड दूसरा 26, -12। डू यू एग्री? तो चलो बताओ इस लाइन का स्लोप क्या है, बोलो -12 -10 डिवाइडेड बाय 26 -18। तो आंसर इज -22 डिवाइडेड बाय 8, मतलब -11/4। तो आप बताओ ये जो ऊपर का लाइन है, समझो ये L1 है, तो आप बताओ वो जो पैरेलल लाइन है उसका स्लोप -11/4 है, तो इसका स्लोप क्या होगा -11/4। अब रेसिप्रोकल नहीं किया क्योंकि अब वो रेसिप्रोकल नहीं, ये पूछ रहा था भाई रेसिप्रोकल करो, मैं बोल रहा था कि अब वो कीड़े बोल रहे मत करो। स्लोप ऑफ L1 इज इट -11/4, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ L1, इक्वेशन ऑफ L1 क्या है, इक्वेशन बोलो 11x + 4y इज इक्वल टू, वी नो वन ऑफ द पॉइंट ऑन दैट लाइन इज 8, -25, तो 11 इंटू 8 प्लस 4 इंटू -25, 11 इंटू 8 प्लस 4 इंटू -25। तो आंसर बताओ क्या है, 11x + 4y इज इक्वल टू 88 - 100 इज -12। तो टेल मी इज इट 11x + 4y + 12 इज इक्वल टू 0। सही है बच्चों? एंड नहीं देखो, कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए बता दूं, तुमको लगता है कि तो राइट सर ऐसे कैसे और ये कैसे, अरे भाई तुम रोज अगर मुझे कल क्या सिखाया था 15 मिनट क्या पहले सीखेगा वही मुझे वापस पहुंचोगे तो तुम्हारे कुछ जाने दो, यूट्यूब है, समझ रहे क्या। रेसिप्रोकल क्यों लिया सर, ये क्या भाई, मतलब तुम्हारे क्या पापा ने रखा है क्या मुझे इधर, हाँ है कि नहीं, कुछ तो उसका भी एक लिमिट होता है ना। एंड नहीं पढ़ना है छोड़ दे मेरे भाई, आपने ऐसा बस की बात नहीं है ये करना, किसी भी झंडू से नहीं होता रहता, समझ रहा है कि नहीं। कोई भी झंडूबाम आएगा और बोलेगा कि मुझे ये बनना है, बस की बात नहीं रहती भाई। उन्होंने बोलेगा नहीं सर मुझे मोटिवेट करने वाले 1000 है, मोटिवेशन से घंटा होता है। बराबर है कि नहीं। Where the answer is 11x + 4y + 12 is equal to 0. Next, find equation of the line having slope of how much bolo 8/5 and passing through the point 20, 16. Find equation of the line having slope of 8/5 and passing through the point bolo 20, 16. बोलो भाई। तो बता, ये सीधा सीधा ये लाइन है समझो जिसका स्लोप अपने को पता है एंड एक पॉइंट भी पता है। आप मुझे बताओ, अभी 2-3 क्वेश्चन छोड़ दो इसके पहले के, उसके पहले यही क्वेश्चन सॉल्व किया ना अपन ने। इसका एक पॉइंट क्या है बोलो 20/16 एंड ये लाइन का स्लोप क्या है बोलो 8/5। तो अगर स्लोप 8/5 होगा तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा 8x - 5y। तो 8 × 20 कितना आता है 160, -5 × 16 80, तो 160 - 80। या अगर सुनो तो बच्चों, कोई स्टूडेंट लगता होगा कि सर अगर स्लोप 8/5 है तो इतना कॉन्फिडेंटली आप 8x - 5y कैसे लिख सकते हो सर, ये तो -8x + 5y भी हो सकता है, उसका भी तो स्लोप 8/5 ही है। कोई बात नहीं मेरे भाई, ये ले लेना तो आपका आंसर सामने -80 आता। -8 × 20 -160 + 80 इज इक्वल टू -80 आता। तो क्या इक्वेशन चेंज हुआ क्या, आंसर चेंज हुआ क्या, नहीं, आंसर अभी भी वही है। समझा क्या। तो आंसर इज 8x - 5y इज इक्वल टू 80, दैट इज 8x - 5y - 80 इज इक्वल टू 0।
इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, है या नहीं? नेक्स्ट, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट. एक पॉइंट दिया हुआ है एंड परपेंडिकुलर टू लाइन दिया है. आपको नहीं लग रहा कि रिपीट क्वेश्चन है वापस, है या नहीं? फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन. समझो ये लाइन का इक्वेशन चाहिए अपने को. ये समझो L1 है, समझा क्या? अच्छा, इस लाइन पे एक पॉइंट है. कौन सा पॉइंट है बोलो? 0.50 कॉमा 8.75. एंड ये लाइन और एक कोई तो दूसरे लाइन को परपेंडिकुलर है, तो समझो ये परपेंडिकुलर लाइन है. ध्यान दे रहे हो क्या भाई? अच्छा, ये परपेंडिकुलर लाइन का क्या पता है आपको? इक्वेशन पता है या स्लोप पता है? इक्वेशन बताओ. इक्वेशन 17x माइनस 20y इज इक्वल टू 88. चलो, ये परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप बता दो बच्चों. 17/20. सही है? तो आप बताओ, देयरफॉर स्लोप ऑफ L1 क्या रहेगा? -20/17. -20/17. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ L1 क्या होगा? इक्वेशन ऑफ L1 क्या होगा? 20x प्लस 17y. बट उस पे वी नो वन ऑफ द पॉइंट ऑन दैट लाइन इज 0.50 एंड 8.75. तो 20 इंटू 0.50 प्लस 17 इंटू 8.75. तो इट इज 20x प्लस 17y इज इक्वल टू 17 इंटू 8.75 जो भी आया प्लस 10. टोटल मीन्स इट 158.75. 158.75. डू यू एग्री? एक काम करो, दोनों साइड को 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा बोलो? 80x प्लस 68y इज इक्वल टू आएगा 635. 4 से मल्टीप्लाई किया भाई दोनों साइड. गलत है? सही है कि चेक करो एक बार. सही है क्या भाई? 80x प्लस 68y इज इक्वल टू 635. और सिंपलीफाई होता है क्या? आपको कुछ लोगों को लग रहा है सर क्यों, लेकिन मल्टीप्लाई क्यों किया? फ्रैक्शन में क्या प्रॉब्लम है? क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर ऑप्शन में वो रहेगा तो उसको टिक करो. समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? बट जनरली ऐसे इंटीजर्स के फॉर्म में आंसर रहता है जनरली. समझा क्या? आपको लगता है सर आपको किसने बोला 4 से मल्टीप्लाई किया? किसी ने नहीं बोला. आप 100 से मल्टीप्लाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करो, बाद में जो आया उसको 25 से डिवाइड करो, यही आएगा. समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? कोई बोलेगा नहीं सर आप मैं 10 से मल्टीप्लाई करने वाला था. जिससे करना है करो भाई, 10 से मल्टीप्लाई करो, बट वो फ्रैक्शन में ही रहेगा. फिर 1587.5 होगा. फिर जो आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करो. समझा क्या? फिर जो भी आएगा, हो सकता है कि सारे नंबर 4 से डिविजिबल है, वो कर देना, आंसर आ जाएगा. कहीं ना कहीं तो आंसर राउंड फिगर में आ जाएगा ना. वो सिंपलेस्ट फॉर्म ये है. यस और नो? बट इतना तो दिख रहा है 0.75 इंटू 4 करने के बाद वो 0.75 इंटू 3 का इंटू 4 का आंसर 3 रहता है. समझता है क्या आपको? ये मतलब वो मैच हो जाएगा बराबर. कहाँ इतना जाएगा दिमाग? हो गया? आज तो मूड ही नहीं है, आज तो लॉ भी नहीं है कि नहीं? जो कुछ थोड़ा बहुत मोटिवेशन रहता है अपने को, बराबर है कि नहीं? अकाउंट्स है ना आज? हो गया अकाउंट्स, हो गया. लॉ नहीं है. मैथ्स है. मतलब ये तो तूफान खराब कॉम्बिनेशन हो गया अपने. मतलब ये खराब चीज क्या हो रही है? लॉ नहीं है. एंड दूसरी खराब चीज क्या हो रही है? मैथ्स है. उल्टा सबसे बेस्ट है ना. मैथ्स नहीं है एंड लॉ 4 घंटे. मैथ्स के टाइम पे भी लॉ है, फिर तो बोनस. एग्जाम में भी बोल देना मैथ्स की जगह लॉ का पेपर दे दो, वापस कर लेते सवाल. अच्छा सुनो, एंड इसके बावजूद ऐसा नहीं कि भाई अपन लॉ में 90+ लाने वाले. उधर भी अपनी प्रॉब्लम ही है. उधर भी अपने उधर भी वो गी है ही. सर लिखना नहीं आता है सर. समझता सब है सर. सर सेक्शन याद नहीं रहते सर. सर सब समझता है बट लिखने नहीं आता है सर. भाई पढ़ाई कर अच्छे से, राइटिंग प्रैक्टिस कर. नहीं होता सर. सबसे खतरनाक कैटेगरी.
है कि नहीं? वो नहीं आ नहीं रहा है सर, सेक्शन नंबर याद नहीं रहते सर, कैसे करूँ सर? याद कर ले भाई, पढ़ पढ़ के याद हो जाते। कैसे याद ही नहीं रहते सर? पढ़ ले भाई। अच्छा, जिसने याद किया, किसने क्या किया है? पढ़ाई की है ना? क्या उसने कुछ ऐसा इंजेक्शन लाया, 2 सेक्शन आ गए भाई, है कि नहीं? एग्रीमेंट कार्ड में एक काम को कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिया था। क्या इंजेक्शन लेके आया कहीं से? नहीं ना भाई, पढ़ किस लाया है उसने भी, है कि नहीं? बुट सर कैसे पढ़ने का ना सर, राइट? मैं अभी नया ज्वाइन किया, कुछ एनी टिप्स फॉर मी? क्या एनी टिप्स फॉर मी? यूट्यूब पे रैंडम लेक्चर में क्या एनी टिप्स फॉर मी? जेनजी, जेड का फुल फॉर्म तो दूसरा ही आता है मेरे दिमाग में हमेशा, जेनजी। क्वेश्चन नंबर 60 करेंगे क्या सॉल्व? महाराष्ट्र लोगों को समझा रहेगा बराबर क्या आ रहा है मेरे दिमाग में, बराबर है कि नहीं? स्लोप ऑफ अ लाइन इज, जो गांव में मराठी मीडियम में पढ़े ना, उनके तो डायरेक्ट दिमाग में गए रह गए, बराबर है कि नहीं? स्लोप ऑफ अ लाइन इज 0, स्लोप ऑफ अ लाइन इज 0, देन दैट लाइन इज, ऑप्शन बताओ मुझे, बोलो। ऑप्शन डी। अच्छा बताओ, एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है? 0। जो एक्स एक्सिस को पैरेलल है उसका स्लोप क्या होता है? 0। एंड जो एक्स को पैरेलल होता है वो वाई को परपेंडिकुलर होता ही है। नहीं समझा आपको? अच्छा, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अच्छा, अभी जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं वो एक्स को पैरेलल है क्या? एंड मतलब वाई को परपेंडिकुलर है। समझा क्या? जो एक्स को पैरेलल होता है वो वाई को परपेंडिकुलर होता है। एक्सप्लेन करूं और? एंड जो y को पैरेलल होता है वो x को परपेंडिकुलर होता है। सही है? चलो नेक्स्ट। स्लोप ऑफ अ लाइन इज नॉट डिफाइंड, देन दैट लाइन कैन बी y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। सही है बच्चों? नेक्स्ट, द लाइन x इज इक्वल टू 25/2, मतलब x इज इक्वल टू कांस्टेंट है, 25/2 कांस्टेंट, इसमें y है ही नहीं, x इज इक्वल टू कांस्टेंट है कि नहीं? तो इट इज अ पैरेलल लाइन टू y एक्सिस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पैरेलल टू y एक्सिस मतलब ही परपेंडिकुलर टू x। समझा है नहीं? जो y को पैरेलल है, अब मैंने कम से कम 10 बार बताया कि नहीं बताई? इफ इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। यस और नो? नेक्स्ट, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स है? 8, 5, 9, 5 में से जाने वाले लाइन का इक्वेशन चाहिए। y इज इक्वल टू 8। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 8, 5, 9, 5। अब करो, सोचो, फिर बताओ। Find equation of the line passing through the points 8, 5 and 9, 5. y is equal to 0 मतलब x एक्सिस, y is equal to 0 जिसका आंसर है y is equal to 0 मतलब कौन सा लाइन है? x एक्सिस। x एक्सिस पे है क्या दोनों पॉइंट? ये 8, 5 x एक्सिस पे है, 9, 5 x एक्सिस पे है। y is equal to 5। वेरी गुड। चलो, इसका आंसर है y इज इक्वल टू 5। अच्छा, कॉमन सेंस से बताओ या फॉर्मूला से? कॉमन सेंस से पहले बात करते। ओके, 2 मिनट के लिए मान लो कि ये तुम्हारा y एक्सिस है। सोचो तो जरा एक मिनट, y एक्सिस, x एक्सिस, समझता है क्या? ये कौन सा एक्सिस है? x। एंड ये कौन सा एक्सिस है? y। समझो ये पॉइंट 8 है और ये पॉइंट 9 है और ये 5 है, तो 8, 5 इधर होगा, 9, 5 इधर होगा। नहीं समझा नालायक को? तो इन दोनों में से जाने वाला लाइन जो है ये है क्या? ये पैरेलल टू क्या है?
एक्स एक्सिस, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्या कॉन्स्टेंट है, y इज इक्वल टू क्या है 5 है, तो इसका आंसर y इज इक्वल टू 5। नहीं समझा आपको? अच्छा 8 5 9 5 10 5 11 5 0 5 सबसे जाएगा ना वो, तो अगर आपको बात करना है तो इसका इक्वेशन है 0x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, सेटिस्फाइज बोथ द इक्वेशंस। 0x प्लस बोलो y। अब कुछ लोग राइट सर 8 9 कहां सर, अरे 0 इंटू 8 करो या 0 इंटू 9 करो, वो है तो 0 ही, प्लस y का वैल्यू कितना है दोनों में 5, तो एज फार एज y कोऑर्डिनेट इज 5, राइट, इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 5। ये भी बताया मैंने शुरुआत में, चैप्टर के शुरुआत में बताया, बट अपन वो मंद बुद्धि है तो क्या करेंगे, तो द आंसर इज y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5। एंड अभी जो मैं बोल रहा हूं इसके रिपरकेशंस, इसका स्टूडेंट की सोच भी मैं जानता हूं, ऐसे कैसे हम लोगों को ये है तो कोई कम रहता है कोई एवरेज रहता है, ऐसे कैसे, अरे मेरे भाई प्रॉब्लम दिमाग का है नहीं, प्रॉब्लम तुम मंद, तुम और पैदाइशी नहीं हो, तुम हो चुके हो, एंड इसमें तुम रिस्पॉन्सिबल हो, एंड कुछ पढ़ना ही नहीं अपने को, वाई मतलब कुछ सोचते ही नहीं, बस वाई फाई कर क्या रहा है भाई, सोच, वाई दोनों जगह वाई का वैल्यू 5 है कि नहीं। अच्छा चलो, कॉमन सेंस अपने में नहीं है, अपने को स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला पता है क्या, स्लोप का फॉर्मूला पता है क्या, तो बोलो ये दो लाइन में से, दो पॉइंट में से जाने वाले लाइन का स्लोप क्या रहता है, हाँ बोलो जल्दी, 5 माइनस 5 डिवाइड बाय 9 माइनस 8, 5 माइनस 5 कितना है 0, तो स्लोप 0 है, मतलब या तो वो लाइन एक्स एक्सिस है या पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इक्वेशन क्या होता है उसका, y इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो y इज इक्वल टू क्या है, दिख ही रहा है ना दोनों जगह y 5 है, यस और नो, दोनों पॉइंट में y का वैल्यू 5 है कि नहीं। अब नेक्स्ट का तो आंसर बताओ, एटलीस्ट बताओ आंसर, y इज इक्वल टू 0, वेरी गुड, सिंपल कॉन्सेप्ट। ये 6 0 पॉइंट कहां पे होता है, एक्स एक्सिस पे होता है, 19 0 कहां होता है एक्स एक्सिस, तो इन दोनों को ज्वाइन कर लिया तो एक्स एक्सिस ही मिलेगा, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 0, दैट्स इट, समझा या नहीं, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 0, ईमानदारी से बताओ कितने लोगों को समझाए। चलो नेक्स्ट, 0 18 एंड 18 0, इसका आंसर है x प्लस वाई इज इक्वल टू 18, नहीं समझा ना को कोई भी, एक काम करो, चलो बाकी छोड़ो, स्लोप पता करो, हाँ करो, 0 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 18 माइनस 0, तो इज इट माइनस 18 बाय 18, तो इज इट माइनस 1 बाय 1, तो स्लोप माइनस 1 बाय 1 है, तो इक्वेशन क्या होगा x प्लस वाई, एंड x प्लस वाई में कोई भी पॉइंट यूज करो, समझा क्या आप, 0 18 या 18 0, 0 प्लस 18 करो या 18 प्लस 0 करो, आंसर तो 18 ही है ना, कितने लोगों को समझाए। नेक्स्ट, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 0 19 एंड 5 19, y इज इक्वल टू 19, वेरी गुड, y इज इक्वल टू 19, 0 19 एंड समझा क्या आपको, एक 5 19, इज दैट क्लियर। अरे इसका इक्वेशन 0x प्लस वाई इज इक्वल टू 19 रहेगा कि नहीं, फिर ये दोनों की जगह y कोऑर्डिनेट 19 है, मतलब डेफिनेटली दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, समझा आपको, ये टफ था भाई ये। अगला क्वेश्चन करोगे क्या सॉल्व, स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, दो पॉइंट दिए, स्लोप दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, कैन आई से इट्स प्योरली कैलकुलेशन। स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला पता है क्या आपको, क्या फॉर्मूला होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, आया किसी का आंसर 47.32 एग्जैक्ट, या आगे कुछ है, एग्जैक्ट 47.32, ओके। Find slope of the line passing through the points 8 by 3, 7 by 5 and 2k by 7, 19 by 3। स्लोप फाइंड नहीं करना है, स्लोप दिया है आपको, k का वैल्यू फाइंड करना है।
slope of the line passing through the point. Tell me, is it 19 by 3 minus 7 by 5 divided by 2k by 7 minus 8 by 3? सही है बच्चों? This is the slope of the line passing through 2 points. सही है क्या भाई? Slope of the line passing through 2 points. कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. इन्होंने खुद बोला है कि ये स्लोप 5/11 है. बोला है कि नहीं? हाँ, चलो करो. न्यूमरेटर बोलो कितना आता है? 95 माइनस 21 डिवाइड बाय 15 एंड डिनोमिनेटर क्या आता है बताओ? 6k माइनस 56 डिवाइडेड बाय 21. टफ है ये. Therefore 5 by 11 इज इक्वल टू, बोलो क्या आ रहा है? 95 माइनस 21 कितना आता है? 74 बाय 15 इंटू 21 बाय 6k माइनस 56. टफ है क्या है? तो 6k माइनस 56 को लेफ्ट में ले लो, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बोलो? 74 बाय 15 इंटू 21 बाय 1 इंटू 11 बाय 5. ये 5/11 भी उधर गया एंड 6k माइनस 56 इधर आया. आपको नहीं लगता कि ये बचा हुआ काम कैल्सी का है सिर्फ? लगता है कि नहीं? करो. 74 इंटू 21 इंटू 11 डिवाइड बाय 15 डिवाइड बाय 5. ये राइट हैंड साइड का आंसर आया. जो भी आया प्लस 56 कर लेना, तो ये 6k का आंसर है. डिवाइड बाय 6 कर देना, k का आंसर है ये. तो टेल मी वेदर k इज 47.32. आपको लग रहा है कि इतना सारा कैलकुलेशन एक स्टेप में कर दिया, बहुत टफ हो गया? डायरेक्ट कैलसी पे होता है ना भाई, ये होता है कि नहीं? 74 इंटू 21 या 74 डिवाइड बाय 15 इंटू 21 इंटू 11 बाय 5 प्लस 56 डिवाइड बाय 6 इज द वैल्यू ऑफ k. टफ था ये? समझा क्या सबको? फिर स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला क्या था? फिर स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स का क्या फॉर्मूला था? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स. आंसर इज 47.32. नेक्स्ट, द लाइन्स आर परपेंडिकुलर. ये तो बेसिक क्वेश्चन है बच्चों. अच्छा, ये लाइंस परपेंडिकुलर है तो क्या करेगी बोलो? स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इंटू स्लोप ऑफ सेकंड लाइन इज इक्वल टू -1. सही है बच्चों? एज दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, as these two lines are perpendicular to each other. बोलो मेरे भाई, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इनटू स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इनटू स्लोप ऑफ सेकंड लाइन इज इक्वल टू -1. स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इनटू स्लोप ऑफ सेकंड लाइन इज इक्वल टू -1. टेल मी व्हाट इज स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन? 3k by 22. What is slope of second line? 90 by 47 is equal to -1. So tell me, is it 270k is equal to 22 into 47 -1034? तो -1034 डिवाइडेड बाय 270. क्या आंसर है? k is equal to -3.8296296296 ऐसे कुछ है. ऑप्शन में -3.83 ऐसा भी रह सकता है. 829 है मतलब 83 रह सकता है. -3.83 अप्रोक्सीमेटली इज आंसर. टफ था भाई ये. तो पैरेलल, परपेंडिकुलर कुछ समझा क्या आपको? मैंने मेरे साइड से तो बहुत कोशिश की भाई, ये सब समझा ही नहीं. इसका 10% भी ICI स्टडी मटेरियल में नहीं दिया ठीक से, एंड जो दिया है वो भी आपको कोई भी समझेगा नहीं, क्योंकि उनको भी पता नहीं हो क्या लिखे उन्हें. समझा यहां तक? चलो, और एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको मे बी इकोनॉमिक्स में भी काम में आएगा, आगे जाके FM में काम में आएगा, बहुत जगह काम में आएगा, जिसका नाम है इंटरसेप्ट.
आईसीएस स्टडी मटेरियल में लिखा भी नहीं है, बट आपको लग रहा है ऐसा क्यों पढ़ा रहे सिर्फ लिखा नहीं है, तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे उसके बाद भी समझा है कि आपको, क्योंकि उनका इंटरप्रिटेशन ये है कि भाई ये बेसिक है, ये स्टूडेंट को पहले से आता है, ये तो मैथ्स का बेसिक पार्ट है, ये हमने लिखने की क्या जरूरत है। बट अपनी प्रॉब्लम अपने को मालूम है ना भाई, तुम्हें नहीं मालूम रहेंगे तो मुझे तो लेकिन पता है एग्जैक्ट, है कि नहीं। ओके, ध्यान दोगे यहां पे एक छोटा सा कंसेप्ट है, कोई डिफिकल्ट काम नहीं, जिसका नाम है इंटरसेप्ट। इंटरसेक्ट नहीं, क्या इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट SEPT, इंटरसेप्ट। ओके, आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे दिख रहा है क्या, कुछ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिख रहा है क्या। अच्छा, एक इक्वेशन है, ओके, एक लाइन है, इसका क्या इक्वेशन है बताओ जरा। 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 210, ऐसा कुछ इक्वेशन है, यस और नो। तो आप मुझे बताओ इस इक्वेशन में इफ आई पुट x इज इक्वल टू 30 एंड y इज इक्वल टू 0, वेदर दैट इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। मतलब वो पॉइंट उस लाइन पे भी है एंड ऑब्वियसली 30 0 तो x एक्सिस पे है, किसी को डाउट ही नहीं है। नहीं समझा आपको? तो मुझे बताओ ये लाइन y एक्सिस को जाके कहां कट करेगा। अगर मैं आपको ये पूछता तो आप मुझे आंसर खुद बता पाते या मैंने 070 बोलने की जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं थी? आप क्या करते, x इज इक्वल टू 0 पुट करते एंड y का वैल्यू लाते उस इक्वेशन में, तो क्या आता वैल्यू ऑफ y, बोलो 70। तो आपको समझता है कि भाई ये इक्वेशन सेटिस्फाई करने वाला वन ऑफ द पॉइंट क्या है, बोलो 0,70। तो ये लाइन पे है पॉइंट 0,70, तो ऑब्वियसली ये लाइन पे है एंड y एक्सिस पे भी है, ऐसा ही रहेगा ना। वो y एक्सिस का और उस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना। अरे 0,70 कहीं क्वाड्रेंट में जाके बैठने वाला है क्या? समझा कि आपको ये वो y एक्सिस पे ही रहेगा ना। तो आप मुझे बताओ ये जो लाइन है वो x एक्सिस को जाके कहां कट करता है, बताओ मुझे 30,0 में, एंड y एक्सिस को जाके कहां कट करता है, बोलो 0,70। तो यू कैन से दैट x इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन, x बोलो इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन इज 30। समझा क्या आपको? तो 30,0 बोलने की जरूरत नहीं, x इंटरसेप्ट है मतलब वो x एक्सिस को जाके कट कर रहा है लाइन। x एक्सिस का 30 मतलब 30,0 एंड y एक्सिस का 90 मतलब 0,90, y एक्सिस का 200 मतलब 0,200, y एक्सिस का -80 मतलब 0,80, x एक्सिस का 35 मतलब 35,0, x एक्सिस का 100 मतलब 100,0। सही है क्या? तो x एक्सिस पे 70 है बोलने के बाद आपको 70 0 ऐसे बोलने की जरूरत है क्या? एंड y एक्सिस पे 70 है मतलब 0,70 बोलने की जरूरत है क्या? तो आप बताओ इस लाइन का x इंटरसेप्ट क्या है, बोलो 30। मतलब ये लाइन x एक्सिस को जाके कहां कट करता है, 30,0 पे। एंड y इंटरसेप्ट क्या, बोलो y इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन इज तो y इंटरसेप्ट 70 है, इसका मतलब दैट लाइन पासेस थ्रू 0,70। तो अगर समझो मैंने बोल दिया कि एक लाइन का x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है, मतलब दैट लाइन पासेस थ्रू a,0 एंड 0,b। समझा क्या? बताओ समझा? मैंने बोल दिया कि भाई एक लाइन का x इंटरसेप्ट 100 है, y इंटरसेप्ट 200 है, मतलब दैट लाइन पासेस थ्रू 100,0 एंड 0,200, 0,200। समझा कि आपको ये इंटरसेप्ट मतलब वो लाइन जाके x एक्सिस को कहां कट करता है, वो पॉइंट इज x इंटरसेप्ट, एंड वही लाइन y एक्सिस को जहां पे भी कट करेगा वो क्या होगा, y इंटरसेप्ट। जैसे आप समझो और एक लाइन है ये, तो ये पॉइंट इस लाइन का x इंटरसेप्ट है, समझो ये पॉइंट लेट से -30 है, तो -30 इज x इंटरसेप्ट ऑफ दिस। नहीं समझा आपको? अब -30 मतलब ये 0 -30 होगा भाई, ये क्या होगा बोलो 0 -30। ये x इंटरसेप्ट है या y है, y, एंड ये क्या होगा x इंटरसेप्ट। समझो वो पॉइंट 25 है, तो 25,0 से जा रहा है ना वो लाइन, तो 25 इज x इंटरसेप्ट, -30 इज द y इंटरसेप्ट। समझा क्या? तो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट का मीनिंग समझा क्या? क्या लिखा है ऊपर, वो पढ़ लो जरा। x इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन 7x प्लस 3y
is equal to 210 is 30 and y intercept of the line 7x plus 3y is equal to 210 is 70. तो x intercept and y intercept समझा के बताओ. उसके नीचे बॉक्स में क्या लिखा है बोलो. If x intercept of a line is m and y intercept of the line is k, then that line passes through m, 0, 0, k. समझा क्या? और एक ऐसा ही सेंटेंस लिखते हैं. ओके, इफ आप बताओ लगे तो बोलो ऐसा ही ऊपर से कैसे. इफ x इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन इज लेट्स से -20 and y intercept is 35, then that line passes through points. Answer do. Then that line passes through points. Line passes through points. Answer do. बोलो. -20, 0 and 0, 35. 0, 35. That line passes through the points -20, 0 and 0, 35. I hope you are getting this. That line passes through the points -20, 0 and 0, 35. Understood or not? पक्का बच्चों? तो x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट समझा क्या आपको ये? ओके, ये लिखा आप सब लोगों ने. ओके, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? फाइंड बोलो इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग x intercept a and y intercept b. X and y intercept as a and b respectively. Find the equation of the line having x intercept a and y intercept b. समझा बच्चों? अच्छे से ध्यान दो प्लीज. कैन आई से as x intercept is बोलो a and बोलो y intercept is b. a and b नंबर रहेंगे ना फिर. दिस लाइन passes through points. आप बताओ पॉइंट्स कौन से? दिस लाइन passes through points. बोलो a, 0 and 0, b. एंड आप बताओ बच्चों फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स. तो 2 पॉइंट्स पता है ना अपने को. कौन से 2 पॉइंट्स है? a, 0 एंड 0, b. तो अपन कौन सा फॉर्मूला यूज कर पाएंगे? y2 - y1. देयरफॉर चलो इक्वेशन ऑफ द लाइन. इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग बोलो मेरे भाई. इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू क्या बोलो? a, 0 एंड 0, b. क्या रहेगा बोलो? y2 - y1 बोलो. b - 0 डिवाइडेड बाय y - 0. y2 - y1 डिवाइड बाय y - y1. नहीं समझा आपको? पहला पॉइंट x1 y1 है, दूसरा x2 y2 है. सोचो कुछ गड़बड़ हो रही है तो बताओ मुझे. इज इक्वल टू x2 - x1. हाँ बोलो 0 - a डिवाइडेड बाय x - a. y2 - y1 डिवाइड बाय y - y1 इज इक्वल टू x2 - x1 डिवाइडेड बाय x - x1. तो टेल मी वेदर दिस इज b डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू -a डिवाइडेड बाय x - a. टफ था ये. यहां तक समझा क्या सबको? एकदम अच्छे से समझा क्या? चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते. b इंटू क्या आएगा बोलो? x - a इज इक्वल टू -ay. सही है क्या? तो बोलो ये क्या आ रहा है? bx माइनस ab इज इक्वल टू -ay. तो टेल मी इज इट bx प्लस ay इज इक्वल टू ab. चलता है क्या? एक काम करते हैं, दोनों साइड को ab से डिवाइड करते हैं. तो bx डिवाइड बाय ab प्लस ay डिवाइडेड बाय ab इज इक्वल टू ab डिवाइड बाय ab 0 नहीं आता है, 1 आता है. सही है? ab डिवाइड बाय ab. तो आप बताओ इसमें से ab एंड b कैंसिल हुआ क्या? ये a एंड a कैंसिल हुआ. क्या आंसर आया बताओ? x बाय a प्लस
y बाय b इज इक्वल टू 1। एंड ये जो आंसर है इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या बोलते हैं उसको? इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। आपको मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बताता और आपको बोलता भाई याद कर लो, तो भी आप कुछ बोलते नहीं है, बट मजा नहीं है उसमें। कुछ समझा या नहीं? ये क्या है बोलो? इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। सही है बच्चों? तो आप मुझे बताओ, कल जाके आपको कोई पूछा फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग x इंटरसेप्ट एज 3 एंड y इंटरसेप्ट एज 5, आंसर क्या रहेगा उसका? x बाय 3 प्लस y बाय बोलो 5 इज इक्वल टू 1। तो आंसर इज 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। 5x प्लस 3y डिवाइड बाय 15, उधर गया 15 हो गए। समझता है आपको ये? तो x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट दिया तो आपको 2 सेकंड में आंसर लाए कि नहीं? 2 सेकंड में इक्वेशन ऑफ लाइन लाए कि नहीं उसके बाद? यस और नो? तो ये जो फाइनल आंसर आया है इसको क्या बोला जाता है? बोलो। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ। ये जो आंसर लिखा है ये क्या है? ये जो आंसर है क्या है? इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। जस्ट तुम्हारे रेफरेंस के लिए यहां पे सुन रहे हो क्या बच्चों? समझो ये x एक्सिस है एंड ये y एक्सिस है। सुन रहे हो क्या बच्चों? x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो कोई तो एक लाइन का इक्वेशन चाहिए था। 2 मिनट के लिए मान लो वो लाइन क्या था? ये। समझा क्या आपको ये? तो ये है a कॉमा 0 एंड ये है बोलो 0 कॉमा b। एंड अगर ऐसा है तो ये लाइन का इक्वेशन यहां पे है। समझा क्या? आर यू गेटिंग दिस? क्या है इक्वेशन फिर उसका लाइन का? बोलो x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। कुछ गया क्या दिमाग में? ये लाइन का इक्वेशन है ये। समझा क्या भाई? इक्वेशन ऑफ दिस लाइन is x by a plus y by b is equal to 1। तो ये जो लाइन है उसका x इंटरसेप्ट a था। आपको कैसे पता चला उसका x इंटरसेप्ट a है? बिकॉज दैट लाइन इज पासिंग थ्रू a कॉमा 0। उस लाइन का y इंटरसेप्ट b है, कैसे पता चला आपको? बिकॉज दैट लाइन इज पासिंग थ्रू 0 कॉमा b, है कि नहीं? तो उसका इक्वेशन क्या रहता है फिर? x बाय a प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। This is the intercept form of equation of line. Intercept form of equation of the line is x by a plus y by b is equal to 1। समझा क्या? पक्का? लिख के लिया आपने? अगला क्वेश्चन करोगे क्या सॉल्व? फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 30 कॉमा 0 0 कॉमा 80। 2 सेकंड का काम है यार लिटरली, है कि नहीं? क्या आंसर है? 8x प्लस 3y इज इक्वल टू 240। पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो या छोड़ दिए?
सितंबर में पास होना है ना सच्ची में, या जनवरी 25 में? जनवरी 25 वाले भी कुछ बंदे हैं इसमें, बट मेजॉरिटी सितंबर में है। पास होना है सितंबर में सच्ची में। अगले सितंबर में अपने को, सितंबर 25 में अपने को क्या देना है? इंटर का एग्ज़ाम देना है, समझा ना? अपना टारगेट है अगले दिवाली में अपन आर्टिकलशिप स्टार्ट कर रहे हैं, बराबर है ना? क्या स्टार्ट कर रहे हैं? अगले दिवाली में अपनी पहचान क्या चाहिए? दिवाली 25 में सर मैं ये फॉर्म में आर्टिकलशिप कर रहा हूँ, समझा है नहीं? ये फॉर्म में हूँ, यहाँ पे हूँ, जो भी कुछ है। अभी ऑडिटिंग का काम करता हूँ, टैक्सेशन करता हूँ, जीएसटी का काम करता हूँ, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी करता हूँ, इक्विटी रिसर्च करता हूँ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करता हूँ, जो भी कुछ डिपार्टमेंट रहेगा, समझ रहा है? या फाउंडेशन का एग्ज़ाम दे रहा हूँ। समझा भाई? इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन समझा? बाकी तुम 100 बात की एक बार बताओ, बाकी तुम कुछ भी करो तुम्हें सिंपैथी मिलेगा सिर्फ, समझ रहा है? बाकी कितना भी नौटंकी करो, कुछ भी करो, ज़्यादा ज़्यादा कोई क्या बोलेगा? नहीं 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 नहीं, सी ए टफ कोर्स है, होता है होता है होता है। चाहिए क्या आपको? समझ रहा है क्या? चाहिए क्या ऐसे लोगों का सिंपैथी? अपने को भाई जो भी कुछ है, कॉम्पिटेंट लोग एक अलग ही उनका बॉडी लैंग्वेज होता है, समझता है क्या? वो गुइंग 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 कैटेगरी नहीं। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स बोलो? 30,0 एंड 0,80। एक मिनट ध्यान दोगे बच्चों? मैं जानता हूं आप सॉल्व किए तो भी ध्यान दो, जिन्होंने सॉल्व किया है आप भी ध्यान देना, ओके? आप मुझे बताओ इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 30,0 एंड कौन सा है बोलो? 0,80। एक काम करते हैं, विल यूज दैट इक्वेशन ऑफ द लाइन वाला फॉर्मूला। कौन सा? y2 माइनस y1। सुनो तो बच्चों, कौन सा? y2 माइनस y1 डिवाइड बाय y माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 डिवाइड बाय x माइनस x। अरे 2 पॉइंट पता है ना अपने को? हाँ चलो बोलो, y2 माइनस y1 बोलो। 80 माइनस 0 डिवाइडेड बाय y माइनस 0 इज इक्वल टू x2 माइनस x1, 0 माइनस 30 डिवाइडेड बाय x माइनस 30। तो ये 80 है इधर इंटू x माइनस 30 इज इक्वल टू बोलो माइनस 30y। y इंटू उधर माइनस 30 है, माइनस 30y। सही है क्या? टेल मी, इज इट 80x माइनस 2400 इज इक्वल टू माइनस 30y? तो टेल मी, इज इट 80x प्लस 30y इज इक्वल टू 2400? तो टेल मी आंसर इज 8x प्लस 3y इज इक्वल टू 240। कौन से मेथड से लाया अपन ने आंसर? y2 माइनस वाले y1 वाले फॉर्मूला से, यस और नो? और दूसरा तरीका, अपन ये 2 पॉइंट्स दिए ना, उन 2 पॉइंट में से जाने वाले लाइन का स्लोप पता करते। पहले क्या पता करेंगे? स्लोप। तो बोलो स्लोप क्या रहेगा? 80 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 30। तो 80 डिवाइडेड बाय माइनस 30 विच इज माइनस 8/3। माइनस 8/3 लिखो या 8/-3 लिखो। अब कल भी ये टेलीग्राम पे डाउट था बच्चों में, एज एक्सपेक्टेड, कि सर माइनस कैसे सर, कभी ऊपर लिखते कभी नीचे लिखते, हमको कैसे पता चलेगा? समझा ना मेरा प्रॉब्लम? समझे क्या आप एग्जैक्टली? है कि नहीं? अच्छा, मैं क्लास में क्या बोला रहेगा? भाई 7/-5 लिखो, या -7/5 लिखो, या -7/5 लिखो। इट्स वन एंड द सेम। ध्यान दो बच्चों, ये ऐसा ही होता है। इससे क्या हो जाता है फिर, कभी कोई एक्चुअल में इंपॉर्टेंट डाउट है, मैं उसको देखता ही नहीं। बराबर है कि नहीं? 100 नालायक डाउट में से ये ढूंढना मुश्किल काम है ना भाई, है कि नहीं? सर एक्स एक्सिस कैसे, सर लाइन कैसे ड्रॉ करते? कैसे ड्रॉ करते? हाथ से ड्रॉ करते। तो स्लोप -8/3 है, तो अब बताओ स्लोप -8/3 है तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगा? 8x प्लस 3y। स्लोप -8/3 है तो 8x प्लस 3y इक्वेशन है। आपको लग रहा है बट इज इक्वल टू कैसे लाएंगे? वी नो वन ऑफ द पॉइंट ऑन दैट लाइन इज 30,0, तो 8 इंटू 30 240 प्लस 0। या वी नो वन ऑफ द पॉइंट ऑन दैट लाइन इज 0,80, तो 8 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 80, क्या आंसर आता है? 240। तो ये 2 मेथड से सॉल्व हुआ, यस और नो? 2 मेथड से सॉल्व हुआ क्या?
तीसरा मेथड जो अभी अपन ने जस्ट सीखा है, 30,0 से जा रहा है मतलब एक्स इंटरसेप्ट 30 है, नहीं समझा आपको? एंड 0,80 से जा रहा है मतलब y इंटरसेप्ट 80 है। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगा? x बाय 30 प्लस y बाय 80 इज इक्वल टू 1। x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1, वेयर a इज x इंटरसेप्ट एंड b इज y इंटरसेप्ट। यस और नो? तो आंसर क्या है? 80x प्लस 30y डिवाइड बाय 2400 इज इक्वल टू 1। तो 80x प्लस 30y is equal to 2400. Therefore, answer is 8x plus 3y is equal to 240. समझ रहा है क्या? एक ही क्वेश्चन में 3 तरीके से बताया, समझा क्या? एंड एग्जाम में ये आप तीनों में से कुछ भी नहीं करोगे, आप ऑप्शन ढूंढोगे डायरेक्टली, ऐसा इक्वेशन ढूंढने का जो दोनों इक्वेशन दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई करता है। नहीं समझा आपको ये? मतलब अगर मैं 30,0 लिखा तो वो सेटिस्फाई होना चाहिए, 0,80 कर दिया तो वो सेटिस्फाई होना चाहिए। अपने दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यस और नो? कुछ ज्यादा है दिमाग में आपको ये? तो दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। तो कल जाके अपने को कोई बोले व्हाट इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या आंसर है उसका? बोलो। x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1, वेयर a इज x इंटरसेप्ट एंड b इज y इंटरसेप्ट, वेयर a इज x इंटरसेप्ट एंड b इज y इंटर। अरे वो दैट लाइन पासेस थ्रू a, 0, तो a है ना x इंटरसेप्ट एंड 0,b से जाता है मतलब b इज द y इंटरसेप्ट। एंड अगर ऐसा है तो इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1 इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1। कितने लोगों को समझा? पक्का भाई? चलो नेक्स्ट, बस आज के लिए लास्ट पॉइंट कंप्लीट करेंगे, चलेगा बच्चों? टाइम है ना थोड़ा बहुत? वो टाइम है ना? इक्वेशन ऑफ द लाइन मैंने दिया है आपको एंड एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट आप मुझे बताओगे। चलो पहला क्वेश्चन है, सुन रहे हो क्या? सुनो तो बच्चों, प्लीज प्लीज वेट। मुझे बताओ इस क्वेश्चन में मैंने x 0 लिख दिया तो y कितना होगा? 18। मतलब इस लाइन पासेस थ्रू 0,18, तो 0,18 से जाता है मतलब 18 इज y इंटरसेप्ट। एंड इस क्वेश्चन में मैंने y 0 कर दिया तो x कितना होगा? 30। दिस लाइन पासेस थ्रू 30,0 ऑल्सो, मतलब x इंटरसेप्ट इज 30। इन शॉर्ट बच्चों x इंटरसेप्ट 30 है मतलब दैट लाइन पासेस थ्रू 30,0 एंड y इंटरसेप्ट 18 है मतलब दैट लाइन पासेस थ्रू 0,18। तो बता कुछ दम है क्या इस क्वेश्चन में यार? अच्छा मुझे बता, इसके पहले अपन कभी देखे थे फर्स्ट लेक्चर में फाइंड एनी 2 पॉइंट सैटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, तो आप मुझे बताओ इसके 2 पॉइंट 30,0 एंड 0,18 बोलते थे कि नहीं आप? तो 30 इज x इंटरसेप्ट, 18 इज द y इंटरसेप्ट। आप कंप्लीट करोगे? अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ, बोलो कितना? 40 एंड माइनस 100। दिस लाइन पासेस थ्रू 40,0 एंड 0, माइनस 100। दिस लाइन पासेस थ्रू 40,0 एंड 0, माइनस 100। चलो करोगे कंप्लीट आप ये पूरा टेबल? हो क्या? हो गया? ऑलरेडी हो गया? क्या बात कर रहे हो इतना फास्ट? आपको फाइंड करना है एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। करो, सॉल्व करो। एक दूसरे का मुंह अपन बाद में देखेंगे, स्पेशल क्लास रखेंगे उसकी, मुंह दिखाई क्लास। ऐसे सब लोग सामने सामने आएंगे और मुंह दिखाएंगे सबको, चले जाएंगे। देख लेना घूर घूर के। हो गया?
अगले क्वेश्चन का आंसर k/13 ऐसा है क्या? एंड अगर x 0 कर दिया तो दिस k/18। कितने लोगों का सच आया था? सच ईमानदारी से बताओ, नहीं आया ना? k/18 कसो कितने लोग आए थे? चलो तो आपको देख रहे हैं ना कितने लोगों का आया, देखो आजू बाजू। क्या क्या डाउट है बेटा? इधर पीछे से लास्ट बेंच। नहीं डाउट आया क्या? नहीं आया? क्या डाउट है? नो डाउट। क्या समझा? डाउट है? चलो ध्यान दो भाई इधर, समझा ना कुछ? अच्छा मुझे ईमानदारी से एक बता देना, कितने लोगों को लगता है कि भाई बेचारा लाचार मजबूर हो रहा है करके? लगता है कि नहीं? बताओ। देखो ना ये नहीं आ रहा है सर, इस इक्वेशन में 13x y को 0 कर दिया मैंने, तो x कितना आएगा? 18 इंटू 0 0 आता है, तो x कितना आएगा? k/13 13x plus 0 is equal to k, therefore 13x is equal to k, therefore x is equal to k/13। मतलब दिस लाइन passes through k/13 comma 0, क्योंकि y 0 था ना, इसलिए k/13 is the x intercept। प्रॉब्लम ये नहीं कि अपने दिमाग कम है, प्रॉब्लम ये है कि इतने दिमाग के साथ आपने कुछ ये करना है। दिमाग कम है से कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे भाई, उसमें क्या। एंड दिस लाइन ऑल्सो पासेस थ्रू 0, k/18। समझा आपको? दिस लाइन ऑल्सो पासेस थ्रू 0, k/18। चलो नेक्स्ट, y 0 कर दिया तो x कितना है? 25, एंड x 0 कर दिया तो y कितना होगा? 500/13 का जो भी आंसर है 500/13। समझा क्या आपको? ये y 0 कर दिया तो x कितना है? -53/2। x 0 कर दिया तो y कितना है? 53/11। हाँ, या -53/-11 है, तो 53/11 हुआ है। So this line passes through -53/2, 0 and 0, 53/11। Next, बोलो। 200/21 and x 0 कर दिया तो y कितना होगा? -200। This line also passes through 0, -200। Next, बोलो। 10 -10। This line passes through 10, 0 and 0, -10। Next, 29, 58। नेक्स्ट 90 एंड 0। तो आप गलत हो, बता रहा हूं, सुनो तो। अब ये समझो तुम्हारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। सुनो तो बच्चों, इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या था? x = 90। x = 90, समझो ये पॉइंट 90, 0 है, तो दिस इज x = 90। दिस लाइन इज, बोलो, x = 90। इट्स अ पैरेलल लाइन टू y एक्सिस। तो मुझे बताओ ये x एक्सिस को कहां जाके कट कर रहा है? कर रहा है क्या कट? यस, x एक्सिस को कहां कट कर रहा है? 90 में। तो x एक्सिस, x को इंटरसेप्ट इज 90, 0। एंड आप बताओ ये लाइन y एक्सिस को कट करता ही नहीं, तो कहां से y इंटरसेप्ट लाओगे? समझा ये नहीं? ये लाइन तो y को पैरेलल है, ये लाइन y एक्सिस को पैरेलल है, तो इसका y इंटरसेप्ट क्या होगा फिर? 0। पैरेलल है, y इंटर कट करता ही नहीं, तो 0 आ गया। मुझे बताओ ये लाइन है, ये क्या 0 में जाके कट कर इधर आ रहा है क्या ये? तो 0 कहां से आया फिर? y इंटरसेप्ट ही नहीं है, नहीं 0 है, नहीं है मतलब 0 क्या? 0 भी एक पॉइंट होता है भाई, सही है कि नहीं? और मैंने सुना था कि प्रॉफिट ही नहीं है मतलब प्रॉफिट 0 होता है।
तो पॉइंट समझ रहा है क्या आपको? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ही नहीं, मतलब जीरो है। जीरो भी एक पॉइंट है मेरे भाई, करेक्ट और नॉट? नहीं है मतलब जीरो। क्या समझो, मैं बोला कि भाई देयर इज नो वाई इंटरसेप्ट, तुम बोल रहे अच्छा जीरो। समझ रहा है क्या? मुझे बताओ ये लाइन क्या है, इसका इक्वेशन बोलो, इसका इक्वेशन बताओ ना आप। x इज इक्वल टू 90। ये y एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट करता है? आंसर दो। करता है क्या? नहीं। तो आप बोलो नहीं, जीरो मत बोलो। क्या बोल रहे हो? नहीं, y इंटरसेप्ट है ही नहीं। आर यू गेटिंग दिस? तो बोलो x इज इक्वल टू 90, बोलो y इंटरसेप्ट क्या लिखो? जीरो लिखो। तो क्या लिखो? इज नो y इंटरसेप्ट। देयर इज, बोलो, नो y इंटरसेप्ट। तुरंत कुछ लोगों का आएगा नो, मतलब जीरो लिखो। जीरो लिखो क्या? y इंटरसेप्ट ही नहीं है, देयर इज नो y इंटरसेप्ट। एज बोलो लाइन इज, बोलो, पैरेलल टू y एक्सिस। y एक्सिस को पैरेलल है, मतलब वो y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता ही नहीं। करेक्ट है? चलो आगे बताओ। y इज इक्वल टू 65, बोलो इसका x इंटरसेप्ट क्या रहेगा? वेरी गुड, नो x इंटरसेप्ट। क्यों बच्चों? क्योंकि ये लाइन x एक्सिस को पैरेलल है। वेरी गुड। एंड y इंटरसेप्ट क्या रहेगा? 65। एज दिस लाइन विल पास थ्रू 0,65। समझा आपको? चलो नेक्स्ट। j बाय k इज x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। j बाय m इज a y इंटरसेप्ट। नेक्स्ट बोलो मेरे भाई। 93 बाय 2k इज x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। 93 बाय 3m सही है क्या? मतलब 31 डिवाइड बाय m, 31 डिवाइड बाय m सही है क्या? चलो नेक्स्ट बोलो जल्दी। m सही है क्या? एंड m बाय 2। नेक्स्ट 300 500। नेक्स्ट 90 बाय 7 एंड नो y इंटरसेप्ट। क्यों नो y इंटरसेप्ट? बिकॉज दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। दिस लाइन x इज इक्वल टू कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट कुछ भी रहने दो, फ्रैक्शन में रहने दो। इट्स अ पैरेलल लाइन टू y एक्सिस, इट्स अ पैरेलल लाइन टू y एक्सिस, देयरफॉर नो y इंटरसेप्ट। कितने लोगों को समझा ये? बहुत गुस्सा आता है क्या मेरा? आया तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा समझा करो ये क्या चल रहा है। गुस्सा आना है आपने को, कुछ 50 साल साथ में रहना नहीं है कि नहीं ये आदमी मुझे शक्ल पसंद नहीं है। मैथ समझ में आता है ना, बस है या नहीं? शैल वी स्टॉप हियर? थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स।